Hello student, good morning to all of you. Once again welcome to class 11 accountancy. But our chapter is going on journal entry, and in this chapter already we have completed our topic discount, and in our last lecture we have discussed about numerical related to discount, and here solution is given of numerical number 8. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसका सॉल्यूशंस भी here given है. And today's lecture we are going to discuss one more numerical number 12. This topic is also related with trade discount and cash discount. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा what is given in our questions. ठीक है, हम पढ़ लेते हैं. Journalize the following transactions in the books of the Dixit and Sons. In the books of the Dixit and Sons, and in our question what is given 2018 March 2. Goods sold to Dilip of list price 62,000 for 60. Already discount is given here. 62,000 की गुड्स को 60 रुपीज में सेल किया हुआ है. ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट कितने की बेटा यहाँ पर 2000 की. दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. नेक्स्ट March 16 परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 lakh फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट. यानी कि अगर हम 75% इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो हमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, हेयर ट्रेड डिस्काउंट एंड ओनली देयर इज ए कैश डिस्काउंट. ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक. Sold goods to Bridge and Company costing 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge and Company paid the full amount by check. ठीक है, अवेल डिस्काउंट. तो बेटा इस क्वेश्चंस को देखो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो इसके बेस पर आप बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे. सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So first of all we will draw format, and here we will write journal of Dixit and Sons. Okay beta, and then we will draw format. First column for date, clear. Second column for particular, and then next column for LF, and next column for debit amount and credit amount. Here you will write, clear, date, particular, LF, debit amount and credit amount. Date, particular, LF, ledger folio, debit amount and credit amount. Beta first transaction, what is given in our question? First here you will mention 2018 and date 2nd March. Clear, March 2nd. What is given in our question? Sold goods to Dilip of list price 62,000 for 60,000. So here we sold goods to Dilip, then it is a credit sale, so Dilip debited to sales account. बेटा सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, एंड देन वी विल राइट हियर जर्नल एंट्री दिलीप डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. रूल के अकॉर्डिंग दिलीप हमारा डेटर्स है. डेटर्स मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट होंगी. सेल्स हमारी इनकम है, बिकॉज ऑफ सेल्स इनकम इंक्रीज हो रही है, और इनकम इंक्रीज होगी देन इनकम विल बी क्रेडिट. नरेशन क्या हो जाएगा हमारा? गुड सोल्ड टू दिलीप, एंड देन हियर वी विल राइट अमाउंट 60,000 बिकॉज सेल हमारी एक्चुअल्स की सेल्स कितनी है 60,000, and after journal entry we will draw this line after narration. Now second transaction March 16. Again we don't need to write March, only we will mention here date March 16. Purchase goods costing 22 lakh from Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount. Beta purchase goods from Hari and Company, and we have made only 75% of payment. That means 75% हमारा किसका है? कैश में है, and बाकी हमारी क्रेडिट है. So entry will be purchase account always debited, purchase account debited,
टू whom we have purchased, टू हरी, बिकॉज 75% हमारा क्रेडिट में है एंड 75% हमारा कैश में है एंड 25% हमारा क्रेडिट में है. तो हमने किसे खरीदा? टू हरी से. जो हमने कैश में परचेज की बेटा उसके लिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट. क्लियर? टू कैश अकाउंट. एंड कैश अकाउंट देने पर हमें 4% की डिस्काउंट मिल रही है. देन वी विल राइट ऑल्सो एयर डिस्काउंट रिसीव्ड. सेल्स पे हम डिस्काउंट देते हैं, परचेज पर हमें डिस्काउंट मिलती है. एंड लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट अमाउंट. बेटा वी हैव परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख. देखो यहाँ पर वर्किंग नोट किस तरह से आप बनाएंगे. 2 लाख की हमारी क्या लिस्ट प्राइस है. एंड देन यू गॉट 10% डिस्काउंट. नो, देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है हमारे पास में. हमने 2 लाख की परचेज की है. तो बेटा परचेज के कॉलम में हम अमाउंट कितनी आएगी? 2 लाख रुपीज. देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट. देन हरी को अगर हम 75% इमीडिएटली दे रहे हैं देन वी आर गेटिंग 4% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. तो बेटा 75% मीन्स आप ये भी बोल सकते हो 3/4. ठीक है, तो 3/4 का मतलब कितना हुआ? 1,50,000. 1,50,000 आपने किसमें दिया है बेटा? कैश में. अगर 1,50,000 आपने कैश में पेमेंट कर दिया है तो आपको हरी को कितना भी देना बाकी है? रिमेनिंग 50,000. ठीक है, कितना बाकी देना? रिमेनिंग 50,000. देन आप अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे? 1,50,000 आप कैश में दे रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग 4% कैश डिस्काउंट. तो 1,50,000 का 4% अगर आप निकालेंगे तो ये आपका होगा, ठीक है, 6,000. 1,50,000 का 4% कितना हुआ? 6,000 आपको मिल रही है डिस्काउंट. टोटल यू हैव परचेज 2 लाख. आपने 2 लाख की टोटल परचेज की है. 50,000 अभी आपको देना बाकी है. 1,50,000 आप पेमेंट कर रहे हो. ठीक है, जिसमें से आपको 6,000 की डिस्काउंट मिल रही है. तो एक्चुअल में आप कितना का पेमेंट कर रहे हो बेटा? 1,50,000 माइनस 6,000 दैट्स मीन 1,44,000 का आप पेमेंट कर रहे हो. देखो डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट. यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर भी इसका टोटल भी 2 लाख होगा. ये वाला जो आपका हिसाब है वो कितने का है? 1,50,000 का, जो आपने कैश में आपको पेमेंट करना था लेकिन आपने क्या किया? कैश में पेमेंट किया और आपको 6,000 की डिस्काउंट मिल गई. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, मेंशन हो गया. फिर नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे. Transactions completed. Narration will be goods purchased and discount received 4% and या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 4%, डिस्काउंट रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 4%. एंड आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ दिस लाइन. ठीक है, ये हमारी 2 ट्रांजेक्शन हो गए बेटा, आपको मैंने समझा दिया. नेक्स्ट हमारी जो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन है उसको आप देखो. जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो हमारा क्या बोल रहा है? नो बेटा, थर्ड ट्रांजेक्शन March 20. Here goods sold to Vishal costing ₹40,000 at 25% प्रॉफिट. क्लियर? कॉस्ट कितनी है? 40,000, 25% प्रॉफिट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. एंट्री बेटा हर बार सेम होगी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है. और 80% आपको क्या मिल रहा है? 80% पेमेंट इमीडिएटली क्या हो रहा है? बाय चेक दिया जा रहा है. ठीक है, तो रिसीव हो रहा है. देन जो हमें 10% की कैश डिस्काउंट मिलेगी वो सिर्फ हमें 80% पर मिलेगी. बट वी हैव ओनली कॉस्ट एंड फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स. सो ऑल वी नो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है बेटा, सेल्स कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट कितनी है? 40%. 25% 40% का 25% आप कैलकुलेट करिए कितना होता है? 40,000 का 25%. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय
100। बेटा आप इसको 1/4 भी बोल सकते हो, दैट्स मीन 10,000। 40,000 प्लस 10,000 तो आपका सेल्स प्राइस कितना आया? 50,000। ठीक है, आपने जो गुड सेल किया है उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। उसमें भी आपको क्या मिल रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो आपका जो सेल्स प्राइस है 50,000। सी हियर कैलकुलेशन एंट्री सेम होगी हर बार, 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, दैट्स मीन 5,000। सो हियर यू विल गेट 45,000। And now if you will make that customer will receive 80% cash discount if he will make payment immediately। ठीक है, कस्टमर को 80% की डिस्काउंट आप दे रहे हो अगर वो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है। तो उसने क्या किया, 80% जो पेमेंट है, सॉरी बेटा मैंने गलत बोल दिया, 80% का नहीं, 10% की कैश डिस्काउंट कस्टमर को रिसीव होगी अगर वो इमीडिएटली पेमेंट करता है। तो कस्टमर ने क्या बोला, 80% का पेमेंट इमीडिएटली कर लिया। तो बेटा जो कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिलेगी वो इमीडिएटली पेमेंट के लिए मिलेगी, नॉट फॉर अदर पेमेंट। तो उसने तुरंत पेमेंट कितना किया? 80%। तो 45,000 का हम 80% कैलकुलेट करेंगे। 45,000 80% डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा? 36,000। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 36,000 जो हमारी वैल्यू आई, एंड देन आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर 36,000 देन 15,6 आपका आया यहाँ पर 9। ठीक है, 9,000। तो 9,000 तो किस पर है? 36,000 तो किस पर आपने कैश में पेमेंट आपको रिसीव हो गया। 9,000 किस में है बेटा? क्रेडिट में है। इस 36,000 में ये जो 80% पेमेंट कस्टमर ने किया है इस पर आप उसको क्या दे रहे हो? 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 36,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 3600 की कस्टमर को आपने डिस्काउंट दे दी। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर वापस से देख लो आप, आपका जो 80% निकला था 36,000, क्लियर। एंड आउट ऑफ 36,000 10%, बिकॉज कस्टमर इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है तो उसको 10% डिस्काउंट मिल रही है। तो 10% डिस्काउंट कितनी हुई? 3600। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश आपको जितना मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा है, चेक मिल रही है, देन क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्काउंट भी आप दे रहे हो, देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। देन क्रेडिट में भी परचेज है, कितने की? 9,000 की। तो उसके लिए क्रेडिट में भी सेल है, किसको आपने सेल किया? विशाल को। तो क्या हो जाएगा? विशाल ट्रेडर्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टोटल आपकी जो सेल थी वो है आपकी आफ्टर 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 45,000 की, जिसमें से आपने क्या किया? कस्टमर को 9,000 तो आपकी क्रेडिट में हो गया। 36,000 का कस्टमर ने आपको कैश में पेमेंट किया, जिसमें चेक से पेमेंट किया, जिसमें आपने उसको 3600 की डिस्काउंट दे दी। डिस्काउंट कितने की दी? 3600 की। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई बेटा? तो आप इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आएगी देन 4। ठीक है, 00 देन 4 एंड देन 2, 32,400। 32,400 काउंट कर लीजिए। डेबिट ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, अगर हम इसको काउंट करते हैं देन ठीक है बराबर ही आएगा आपका डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट। नरेशन आप क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट। ये आपको मैंने ऐसे लिखा हुआ, आपको ये फॉर्मेट में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारी एक एंट्री पास हो गई। एंट्री नंबर 26 की आपकी एंट्री पास हो गई, 26 ऑफ मार्च की। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी 20 मार्च की होगी। 26 ऑफ मार्च की अगर हम बात करें तो सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge and company paid the full amount by check and availed cash discount. उन्होंने पूरा पैसा,
सेम यहाँ पर है, बस इतना है कि पहले आपका 40% वो पे कर रहे थे, यहाँ पर वो फुल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो बेटा देखो ये अमाउंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डेट आपकी कितनी है, 26 मार्च, ठीक है। डेट के कॉलम में आप डेट मेंशन कर देंगे। अमाउंट की कैलकुलेशन को वापस से समझ लेते हैं हम। कॉस्ट कितनी है आपकी, कॉस्ट प्राइस है 50,000, क्लियर। प्रॉफिट कितना है आपका 40% प्लस 40%, तो सेल्स आपका कितना निकलेगा, सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू बी सेल्स, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू बी सेल्स। तो बेटा 40% अगर आप निकालेंगे 50,000, 40% कितना होगा बेटा यहाँ पर 20,000, ठीक है। तो आपकी जो सेल्स प्राइस आई कितनी आई 70,000 आपकी सेल्स प्राइस आई। ये आपकी कॉस्ट थी और ये आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000 आपका सेल प्राइस आई। अब इसमें से भी कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को क्या मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है। कस्टमर अगर पेमेंट करेगा 40%, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, देन हम लेस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10%, दैट्स मीन 7,000। तो आपकी जो अमाउंट आई वो आपकी वैल्यू है अमाउंट की, वो है आपकी 63,000 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड देन फिर आप अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको निकालेंगे, 63,000 तो आपकी वैल्यू आ गई। एंड देन नेक्स्ट है आपका कैश डिस्काउंट कितना है, अगर वो पेमेंट कर रहा है फुल देन 5% कैश डिस्काउंट, तो ही पेड फुल अमाउंट। तो बेटा इसकी 5% निकाल दीजिए, लेस क्या करोगे आप, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है। तो 5% कैश डिस्काउंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100, 3150 कैश डिस्काउंट आ गई, ठीक है। तो आप देखो जनरल एंट्री आपकी क्या होगी, 63,000 आपको पेमेंट मिलना था, सॉरी आपको पेमेंट करना नहीं, आपको मिलना था, जिसमें से कस्टमर ने पूरा पेमेंट कर दिया, तो आपने उसको 3,150 का डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में जो आपको चेक मिला है, पैसे का पेमेंट जो मिला है वो कितना, बेटा याद रखना कैश में पेमेंट हो या चेक से पेमेंट हो, वो आपको कैश पेमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। कैश से पेमेंट हो या चेक से पेमेंट हो, वो आपका कैश पेमेंट ही माना जाएगा। देन यहाँ पर अमाउंट आएगी 59,850, काउंट कर लो, ये 63 के बराबर होगा। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, देखो हर बार सेम एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा अमाउंट देखो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, अगेन गुड्स सोल्ड हमने कितने का किया है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 63,000 का जो हमारी सेल है, 63,000 की सेल है। एंड देन अमाउंट देखो यहाँ पर 63,000 की हमारी जो सेल है, एंड देन हाउ यू विल राइट अमाउंट हियर बेटा 63,000, एंड देन जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारी डिस्काउंट की अमाउंट होगी 3150, ठीक है, 3150। एंड देन जो आप अमाउंट एक्चुअल में आपको रिसीव हुई है 59,850, एंड हियर यू विल राइट ट्रेड डिस्काउंट, देन गुड्स सोल्ड, अगेन सारी एंट्री सेल्स की थी, एक को छोड़कर, गुड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट, ये आपका नरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में, स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी।